Okay, welcome to all of you. Today, I am going to start the important topic solutions. This solutions topic is very important of your PhD work. First of all, I want to give some idea about the solutions. For example, what is the solutions? What is the homogeneous solutions? What is the heterogeneous solutions? What is the colloidal solutions? What is the saturated solutions? And what is the super saturated solutions? मैं वैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में बेसिक नॉलेज देते हुए आगे फिर बढ़ेंगे. A solution is defined as a mixture of two or more non-reacting substances whose composition may be varied between certain limits. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. A homogeneous mixture is a single phase system whose constituents cannot be separated from each other by mechanical means and has the same composition throughout. A heterogeneous solution, on the other hand, can be readily separated from each other by simple mechanical device. Such a heterogeneous mixture is called a porous mixture. Example, a mixture of salt and sugar. तो मैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में आपको बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर में उसको हम किसी भी मेथड से जो उसमें कंपोनेंट हैं उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में बाय मैकेनिकल मेथड से हम उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं. Besides these, there are solutions which appear homogeneous to the naked eye but are heterogeneous. कुछ ऐसे solutions हैं जो by naked eye आप देखेंगे तो लगेगा कि homogeneous solutions है, लेकिन their heterogeneity can be revealed through a microscope or ultra microscope. Such solutions are called colloidal solutions. लेकिन जब उस solutions को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं चाहे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो सेपरेटली उसमें आपको दिखाई देंगे. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं. इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स at a given temperature as much solute as can be dissolved, the solution is said to be saturated solution. If the quantity of the solute is less than this amount, it is known as unsaturated solutions. On the other hand, if the quantity of the solute dissolved is more than the saturation value, the solution is said to be supersaturated. Saturated solutions means कि आप अधिक से अधिक जितनी मात्रा उसमें डिजॉल्व कर सकें और वो सोल्यूशन सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए उसको हम सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. और यदि सेचुरेटेड सोल्यूशन की जो मात्रा है सॉल्यूट की उसे यदि कम आप डिजॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है. और सेचुरेशन के बाद भी उसमें आप सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस. तो these 4-5 terms about the solutions. What is the solutions? What is the homogeneous solutions? What is the heterogeneous? What is the colloidal solutions? What is the saturated? And what is the supersaturated? And what is the unsaturated solutions? This is the idea about this type of solutions. In the next page, I want to give some basic parameters by which you can measurement the concentration of the solutions. First, mass percent. The mass percent of solvent in a solution is given by mass percent of solution is equal to W1 upon W1 plus W2 into 100, where W1 and W2 are the masses of two components. Second, volume percent. Volume percent of solvent is given by volume percent of solvent is equal to B1 upon
B1 plus B2 into 100, where B1 and B2 are the volumes of solvent 1 and 2 respectively. इसको थोड़ा हम क्लियर करना चाहेंगे कि मास परसेंट, कभी कभी आपको 5% का सोल्यूशन बनाना है, 5%, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 5% का सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। 10%, 5% सोल्यूशंस आपको बनाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परसेंट मीन्स 100 ग्राम वाटर में यदि आप 5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो 5% का सोल्यूशन तैयार होगा। इफ यू डिजॉल्व 10 ग्राम in 100 ml of water, then you find the 10% of the solutions. So this is the percent solution. फार्मूला तो मैं दिया हूं, लेकिन आप यदि लैब में वर्क करते हैं तो कैसे सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट आइडिया ये है कि जितने परसेंट का सोल्यूशन बनाना हो, 100 ml वाटर लीजिए, 5% का बनाना हो, 10% का बनाना हो, 20% का बनाना हो, तो 20 ग्राम आप सॉल्यूट वेइंग करें और 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो उतने परसेंट का सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर वॉल्यूम परसेंट होता है। यदि मान लीजिए आपका जो सॉल्यूट यदि लिक्विड है और सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा ही, उस केस में आप कैसे सॉल्यूशंस बनाएंगे, दोनों लिक्विड हैं तो उसमें मान लीजिए यदि 5% का सोल्यूशन बनाना है तो उसमें 5% आप लिक्विड सॉल्यूट जिसको हम कहते हैं, इफ सॉल्यूट इज हियर लिक्विड, देन यू टेक 5 ml सॉल्यूट मीन्स लिक्विड सॉल्यूट एंड 95 ml ऑफ वाटर, टोटल हो गया 100 ml, तो 5% का सोल्यूशन आपका बनके तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि आपने 100 ml वाटर लिया और उसमें 5 ml जो लिक्विड जिसका बनाना है परसेंट 5 ml अलग से ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम जो है 105 ml हो जाएगा। तो आपका जो 5% का सोल्यूशन न बन करके वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। ये आपको मैं आइडिया क्लियर कर दूं कि फॉर मेकिंग द 10% ऑफ सोल्यूशन लिक्विड you take 10 ml of liquid solute and dissolve in 90 ml of water, then you find the 10% solution of the liquid solvent system. सॉलिड मटेरियल है तो आप 5 ग्राम 10 ग्राम 100 ml में डिजॉल्व करेंगे। यदि लिक्विड है तो 5 ml 10 ml लीजिए और टोटल वाटर प्लस लिक्विड का टोटल वॉल्यूम 100 ml होना चाहिए। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सेकेंड, मोलेरिटी। द मोलेरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। Thus, molarity M is equal to number of moles of the solute upon volume in decimeter cube or liter of the solution. Molarity means ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर। सिंपली मैं आपसे बात करूं, फार्मूला को छोड़िए, द नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर, 1 लीटर में मॉलिक्यूल्स के कितने मोल डिजॉल्व हैं उसको हम मोलर सोल्यूशन कहते हैं। यदि 1 मोल डिजॉल्व है 1 लीटर में तो 1 मोल का सोल्यूशन बना, 2 मोल्स डिजॉल्व है तो 2 मोलर का सोल्यूशन बना। तो दिस इज द मोलेरिटी। इसके बाद मोलेलिटी, मोलेरिटी एम, मोलेरिटी एम स्मॉल एम, the number of moles of solute per kilogram of the solvent. Molarity M is equal to number of moles of solute upon kg of solvent. इसमें आपको ये देखना है मोलरिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम वेट लेंगे पर केजी, सॉल्वेंट का वेट भी ले सकते हैं और वॉल्यूम में भी उसका 1 लीटर ले सकते हैं, लेकिन मोलरिटी के केस में हम सॉल्वेंट 1 केजी लेंगे, वाटर है तो उसका हम वेइंग करेंगे 1 केजी। 1 केजी में जितना मोल्स डिजॉल्व होगा उसको हम मोलरिटी कहेंगे, और 1 लीटर पानी में जितना मोल्स डिजॉल्व होगा, नहीं, 1 लीटर पानी में जितना डिजॉल्व होगा मोल्स उसको मोलरिटी कहेंगे, और 1 किग्रा पानी में जितना मोल्स डिजॉल्व होगा उसको हम मोलेलिटी कहते हैं। ओके। फोर्थ, नॉर्मेलिटी।
the number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of the solution. Normality N is equal to number of gram equivalents of the solute upon volume in liter of the solution. इसमें यह है नॉर्मेलिटी में कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर, 1 लीटर में उस मॉलिक्यूल के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं उसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसमें हम क्लियर कर दें, इससे मोलरिटी मोल की बात आ रही है, तो व्हाट डू मीन बाय मोल? यदि हम आपको लैब में लेबोरेटरी में, बिकॉज आई होप दैट मोस्ट ऑफ द हियर स्टूडेंट्स आर टीचर्स एंड maybe becomes teacher in future, यदि आपको लैब में वर्क मिलता है और आपको डायरेक्ट 1 मोलर का सोल्यूशन बनाना है 1 लीटर, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल का सोल्यूशन बनाना है 1 लीटर, तो क्या करेंगे आप? 1 मोल सोडियम क्लोराइड कितना लेंगे? तो बहुत बच्चे फार्मूला बताते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ एग्रीडोज नंबर। ये सब कुछ नहीं, आप सीधे प्रैक्टिकली नॉलेज रखिए। यदि आपको 1 मोल का सॉल्यूशन बनाना है तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल का मतलब ये होता है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्वेंट, सोडियम क्लोराइड का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम 1 मोल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, molecular weight of sodium chloride NaCl is equal to 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जब 1 लीटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो 1 मोल का सोल्यूशन बनाए। ओके, यदि मान लीजिए आपको 2 मोल का सोल्यूशन बनाना है तो 58.5 का जस्ट डबल आप सोडियम क्लोराइड लेंगे और 1 लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो 2 मोल का सोल्यूशन बनेगा। तो you should have idea about the mole concept. What do you mean by mole? Mole means the weight of the molecular weight of that solvent. जितना उसका molecular weight है उसी को हम 1 मोल कहते हैं। और इसमें नॉर्मेलिटी है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जितना उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज 40 एंड द इक्विवेलेंट वेट इज आल्सो 40। यदि 40 ग्राम NaOH आप 1 लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो आपको 1 नॉर्मल का सोल्यूशन प्राप्त होगा। यदि 80 ग्राम मीन्स 2 मोल NaOH या 2 इक्विवेलेंट वेट NaOH डिजॉल्व करेंगे 1 लीटर में तो आपको 2N का सोल्यूशन बनेगा। यदि आपको N/10 NaOH बनाना है 1 लीटर, इफ यू वांट टू मेक N/10 NaOH 1 liter solution, what you do? You take the 1/10 of the equivalent weight. For example, equivalent weight of the NaOH is equal to 40 ग्राम, 1/10 करेंगे तो 4 ग्राम, तो 4 ग्राम यदि आप 1 लीटर में डिजॉल्व करते हैं तो N/10 का NaOH सोल्यूशन बनेगा आपका 1 लीटर। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, the ratio of the number of moles of the component to the total number of moles of all the components present in the solution. X1 is equal to number of moles of component first and total number of moles of components. N1 is equal to N1 plus N2. इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में 2 कंपोनेंट फर्स्ट और सेकेंड हैं, डिजॉल्व हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द नंबर ऑफ 5 moles of the first component and 20 moles of the second component, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का आप निकालेंगे तो 5/5 प्लस 20, 5/25, 1/5 हो गया आपका। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उतने
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो उससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें मैं इसमें नोट्स नहीं दिया हूं, लेकिन एक कंसंट्रेशन को मेजर करने का जो नया तरीका है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, जो भी हम रिसर्च में वर्क करते हैं हम पीपीएम में निकालते हैं। यदि आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री वगैरह में करवाते हैं, जैसे टू वेरीफाई द लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ फॉर मिथाइलिन ब्लू और मेथिल ऑरेंज, तो you should take prepare the solutions of the methyl orange or methylene blue in the ppm में आपको सोल्यूशन बनाना पड़ता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm, पार्ट पर मिलियन। ओके, तो ppm इज द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख में आपके सॉल्यूट का कितना पार्ट है उसको हम पीपीएम कहते हैं। 10 लाख में आपके सॉल्यूट का कितना पार्ट है, यदि 10 पार्ट है 10 लाख में तो आपका 10 पीपीएम हुआ। और सिंपली मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपको पीपीएम सॉल्यूशंस बनाना हो 10 पीपीएम का, मेथिल ऑरेंज का या किसी भी सोडियम क्लोराइड का भी, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको करना है कि 10 milligram dissolve in 1 liter. If you want to 10 ppm solution of sodium chloride, to take 10 milligram of the sodium chloride and dissolve in 1 liter, so you found the 10 ppm solution. 10 ppm, देखिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं। 1 ग्राम जब आप 1 लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 1000 पर पार्ट हो गया। और 1 मिलीग्राम जब डिजॉल्व करेंगे आप तो 1 किलोग्राम का 1 मिलीग्राम जो है 10⁶ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम। तो इसलिए हम जब 1 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करेंगे तो 10⁶ का जो है वो 1 पार्ट हुआ, 1 ppm। 2 मिलीग्राम डिजॉल्व करेंगे तो 2 ppm, 10 मिलीग्राम डिजॉल्व करेंगे 1 लीटर में तो 10 ppm हुआ। तो इस तरह हम ppm का सोल्यूशन बनाते हैं यदि आपका सॉल्यूट जो है सॉलिड है। तो कभी कभी आपको लिक्विड का भी ppm सोल्यूशन बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 1 ml आप डिजॉल्व करेंगे 1 लीटर में, तो उसको हम कहेंगे 10 ppm। 1 मिलीलीटर 1 मिलीएल जब डिजॉल्व करेंगे तो उसको हम कहेंगे 1 ppm। ओके, अच्छा इसमें एक और प्रश्न आता है कि ये वेट बाय वेट होता है, रेशियो होता है, जैसे 1 ग्राम ppm, लेकिन यदि लिक्विड है तो चूंकि 1 केजी वाटर का जो वेट है वो 1 लीटर के बराबर माना जाता है। 1 लीटर, इफ यू टेक द 1 लीटर ऑफ वाटर दैट आर इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट द मैक्सिमम डेंसिटी। और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर किस टेम्परेचर पे होता है आपको नॉलेज भी होगा, मैं बताऊं कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 1 लीटर वाटर का वजन जो है 1 किग्रा के बराबर होता है। तो 1 लीटर वाटर में यदि आप 1 मिलीग्राम डिजॉल्व करेंगे तो 1 ppm का सोल्यूशन तैयार होगा। अब मैं समझता हूं कि इसको कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, this is the Henry laws. What is the Henry laws? It states that the mass of the gas dissolved by a unit volume of a solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas with which it is in equilibrium. If x2 is the mole fraction of the gas dissolved by unit volume of the solvent at equilibrium pressure P, then x2 is proportional to P.
So what is the meaning of this? The mole fraction of dissolved substance is directly proportional to the pressure of that solvent. If X2 is the mole fraction of the gas dissolved by unit volume, then solvent at equilibrium pressure P, X2 is proportional to P, or X2 is equal to K dash P, or P is equal to KH X2, where KH is equal to 1 by KH dash, where KH is proportionality constant known as Henry law constant and has the dimension of pressure. तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि किसी हम सोल्यूशन में कोई मॉलिक्यूल डिजॉल्व करते हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है ऑफ द गैस के सॉल्वेंट के. Thus, a plot of solubility of the gas against the equilibrium pressure at a given temperature gives a straight line passing through the origin. In the figure, you can see this so that validity of Henry law. It has been found that Henry law is obeyed by the dilute solutions of gases that do not react with the solvent. इसमें सॉल्युबिलिटी और इक्विलिब्रियम प्रेशर में ग्राफ प्लॉट किया गया है. तो आपको यू शुड ऑब्टेन ए स्ट्रेट थ्रू द मीन्स दैट this solutions and gas follow the Henry's law. Okay. After this, I come to my main point: ideal solutions. In your syllabus, ideal solutions and non-ideal solutions are mentioned. And what is the property of the ideal solutions and non-ideal solutions? So this is the main topic, ideal solutions. What is the ideal solutions? An ideal solutions is defined as the one in which there is complete uniformity in cohesive force. The solute-solute, solvent-solvent, and solute-solvent interactions are identical. Thus, if there are two components A and B forming an ideal solution, then the intermolecular force between AA, AB, and BB are the essentially equal. इसमें एक सेंटेंस था कि an ideal solution is defined as the one in which there is a complete uniformity in cohesive forces. Cohesive forces means the force acting between same components. सेम कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्स होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी तो ये आइडियल सॉल्यूशंस हो सकता है. यदि मान लीजिए उसमें ए और बी दो सॉल्यूट हैं, किसी सॉल्यूशंस में आप डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों के बीच में जो सॉल्यूट ए है, तो इफ यू टेक द two atoms of solute A, so the force acting between A and the force acting between BB and the force acting between AB, all these forces should be identical, should be same. So that solutions are known as ideal solutions. जो सॉल्यूट है जो आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दूसरा सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स के बीच में फोर्स है वो, और जब डिजॉल्व कर देंगे आप किसी सॉल्यूशंस में तो एक दूसरे में ए और बी आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो इनके भी जो बीच फोर्स लगेगा तीनों फोर्स शुड बी इक्वल. द फोर्स बिटवीन ए बी एंड ए बी, दे फोर्स शुड बी identical. This is the characteristics of ideal solutions. Here is some main points. Characteristics of an ideal solutions. When two pure substances mix to form an ideal solution, there is no evolution or absorption of heat. That is, the heat of mixing, delta H mixing is 0. That is, delta H mixing is equal to 0. ठीक है? What is the meaning of this? If you mix the two pure substance, then there should be no evolution or absorption of heat. यदि आप दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद न तो एनर्जी का इवोल्यूशन होना चाहिए
न तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि जब पानी में आप मिलाते हैं तो एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, सिंपली आप एग्जांपल देखना चाहेंगे तो मान लीजिए जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो चूना आप सब जानते हैं, उसको यदि पानी में भिगोते हैं आप तो वो पानी गर्म हो जाता है, तो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से यदि मान लीजिए दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो यदि आइडियल सॉल्यूशंस है तो उसमें तो न तो एनर्जी लिबरेट होगी और न तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन will be equal to the sum of the volumes of the components mixed, that is the volume of mixing delta V mixing is 0। दो कंपोनेंट है, दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट का जो सम होगा वॉल्यूम का, मिक्स करने के बाद भी वही वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0। माने मिक्स करने के पहले उनका वॉल्यूम जितना हो, मिक्स करने के बाद भी टोटल वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो दैट सॉल्यूशंस आर द आइडियल सॉल्यूशंस। थर्ड है द आइडियल सॉल्यूशंस मस्ट ओबे राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ ओवर द होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। आइडियल सॉल्यूशंस को राउल्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों को फॉलो करना चाहिए ओवर द होल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हर रेंज में, प्रत्येक रेंज में जब ये आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो करेगा राउल्स लॉ और हेनरी लॉ को, तो कह सकते हैं कि दिस इज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप हेनरी लॉ के बारे में तो मैं बता चुका हूं, अब आई वांट टू गिव द व्हाट इज द राउल्स लॉ। An important property in the theory of solutions is the vapor pressure of a component above solution. The partial vapor pressure is a measure of the tendency of molecules of the components to escape from solution into the vapor phase। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे an important property in the theory of solutions is the vapor pressure of a component above solutions। The partial vapor pressure is a pressure of the tendency of molecules of components to escape from solution into the vapor phase। solutions का भी प्रेशर होता है, उसका मैकेनिज्म यह है कि जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को या सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो इसमें देखिए vapor pressure is a measure of the tendency of molecules of the components to escape from the solutions into the vapor phase। वो solutions में से जो component होते हैं वो escape की tendency रखते हैं, उस solutions के surface पे आते हैं और फिर वहां से escape करना चाहते हैं, तो जब escape करके ऊपर जाते हैं तो एक वेपर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो उसी को मेजर करते हैं हम, टेंडेंसी को, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। सॉल्यूशंस के जस्ट ऊपर एक वेपर प्रेशर डेवलप हो जाता है बिकॉज द सब्सटेंस व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, दैट सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू एस्केप द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशंस ड्यू टू व्हिच देयर एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्यूशंस एंड वेपर फेज दैट आर नोन एज द partial vapor pressure। If we have an ideal solution containing volatile components 1 and 2, then the tendency of molecules 1 and 2 escape is the same whether it is surrounded entirely by one molecule or by two molecules or rapidly by both and one। मैं इसको फिर रिपीट करना चाहूंगा। इफ यू हैव एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स 1 and 2, यदि उसमें दो कंपोनेंट 1 and 2 है, देन द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 and 2 टू escape करने की टेंडेंसी दोनों कंपोनेंट की, 1 and 2 दोनों कंपोनेंट की जो escape सॉल्यूशंस को escape करने की टेंडेंसी होगी, दैट शुड बी सेम whether it is surrounded by entirely by one molecules or by two molecules or partially by both and 1, 2। The vapor, next,
The vapor present above the solution due to the escaping tendency are in equilibrium and exerts definite vapor pressure. मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि जो सॉल्वेंट की स्केपिंग टेंडेंसी है, स्केप करने की टेंडेंसी है सॉल्यूशन से, तो उसके बीच और सॉल्यूशंस के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है एंड एग्जर्ट्स डिफिनिट वेपर प्रेशर, जो एक वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, डेवलप करते हैं. If P1 and P2 are the partial pressures of two components 1 and 2, then the total pressure P is equal to P1 plus P2 according to Dalton's law of partial pressure. ये दोनों कंपोनेंट का प्रेशर P1 और P2 है पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ becomes P1 plus P2. The partial pressure of individual component can be easily determined by Raoult's law. यदि हम दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अलग अलग कैलकुलेट करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ यू कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, अब मैं राउल्ट्स लॉ के बारे में थोड़ा आपको आइडिया देना चाहूंगा कि व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट at a given temperature, the vapor pressure of any volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है. Then Ps is proportional to x1. You can see in this transparency P1 is proportional to x1 or Ps is equal to constant into x1. The value of constant can be obtained using initial conditions. If x1 is equal to 1, x1 is the mole fraction of the component first. यदि mole fraction of component is equal to 1 है, it means that pure component Ps is equal to constant is equal to P0 is equal to vapor pressure of pure component. यदि किसी मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब कि वो केवल प्योर कंपोनेंट हो गया, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है. इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ x1 is equal to 1, it means that is a mole fraction or moles of the pure component. तो प्योर कंपोनेंट को हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, that is the vapor pressure of the pure component. So we have Ps is equal to P0. The constant in the equation number, in the above equation, constant is replaced by P0. And P0, what is the P0? P0 is the vapor pressure of the pure component. So the above equation becomes Ps is equal to P0 x1. For a binary solution of two volatile components 1 and 2, we have P1 is equal to P10x1 and P2 is equal to P20x2. P1 and P2, the P1 is the partial pressure of component first, P2 is the partial pressure of the component first, x1 is the mole fraction of component first, x2 is the mole fraction of component second. And an ideal solution obeys Raoult's law over the whole range of concentration. The total vapor pressure P of the solution is given by simply P is equal to P1 plus P2, and you put the value of P1 here. P1 is equal to P10x1 by the equation 2 and 3. With the help of equation 2 and 3, you can put the value of P1 is equal to P10x1 plus P20x2. Since x1 plus x2 is equal to 1, then equation जो total fraction 1 ही होगा x1 x2 का, x1 plus x2 is equal to 1, then equation 2 can be written as P1 is equal to P10 1 minus x2. P10 x1 में आप इक्वेशन 2 में जो x1 की वैल्यू है आप पुट करेंगे 1 minus x2 with the help of x1 plus x2 is equal to 1. From here you can obtain x1 is equal to 1 minus x2.
तो x1 के प्लेस पे आप 1 माइनस x2 प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यू गेट P1 इक्वल टू P10 1 माइनस x2 और P1 इक्वल टू P10 माइनस P10 x2 और P10 माइनस P1 अपान P10 इक्वल टू x2। इसको आप मैथमेटिकल टर्म है, इसको अरेंज करेंगे तो आपको लास्टली फाउंड द P10 माइनस P1 अपान P10 x2। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 you can say that equation 5 shows that the relative lowering in the partial pressure of the solvent is equal to the mole fraction of the solute. This is the Raoult's law. This is the simply Raoult's law. The relative lowering in the partial vapor pressure of the solvent is equal to the mole fraction of the solute. The above equation 4 can also be written as, मैं यहाँ पे जो equation 4 है only I want to give the mathematical form of the Raoult's law, but my purpose is I am going to proceed. The equation 4 can be written as equation 4 P equal to P10 1 minus x2। इक्वेशन 4 आप देख सकते हैं इसी पेज पे है, x1 की वैल्यू मैंने पुट किया 1 माइनस x2 इन दिस इक्वेशन, तो P10 1 माइनस x2 प्लस P20 x2, ये हो जाएगा आपका P10 माइनस P10 x2 प्लस P20 x2 और P इक्वल टू P10 प्लस x2 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो P20 माइनस P10 हो गया। इक्वेशन नंबर 6, फाइनली यू फाइंड द इक्वेशन P इक्वल टू P10 प्लस x2 P20 minus P1. This is a very important equation. The relation 4 and 5 are such that if P1, P2 and P are plotted against mole fraction, P1 and P2 are plotted against mole fraction of either of the components in the solution, say x2, at a given temperature, a straight line will result. इक्वेशन 4 एंड 5, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 एंड 5 यदि इसका आप इंटरप्रिटेशन करना चाहें, इफ P1, P2 एंड P आर प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, किसी भी कंपोनेंट को ले लीजिए x1 या x2, एक x एक्सिस पे x2 मान लो, हम सपोज दैट हियर टेक x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 ले लीजिए और इसमें P1 में, P2 में और P में एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो यू ऑब्टेन सच टाइप ऑफ ग्राफ्स यू कैन सी इन हियर। दिस इज द ग्राफ x2 on the x axis, vapor pressure on y axis. So what happens, I explain this graph in figure. The dotted lines represent the partial pressure of 1 and 2. देखिए इसमें P1 और P2 जो स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 और 2 है। These lines pass through the origin, indicating that both components are behaving ideally. दोनों स्ट्रेट लाइन जो डॉटेड है ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इट मीन्स दैट these follow the ideal behavior of the Raoult's law. And when x2 is equal to 1, that is only pure components 2 is present, P is equal to P20. Where if x2 is equal to 0, that is pure component first is present, P is equal to P10. Thus solid line indicates the total vapor pressure of the ideal solution. इसमें देखिए सॉलिड लाइन, देखिए इसमें दो कंडीशन इसमें दिया हुआ है, इसको आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। These lines passes through origin that are behaving ideal. When x2 is equal to 1, यहाँ देखिए एक A और B, at the A x2 is equal to 0 and at B x2 is equal to 1. So when x2 is equal to 1, it means that x1 is equal to 0. तो pressure of the component 2 is equal to total pressure of the gas. And if x1 is equal to 1, it means that
total pressure of component first is equal to total pressure of the gas. So here dotted line, you can see a dotted line, total vapor pressure P is equal to P1 plus P2. That is pure component first. The solid line indicates the total vapor pressure of the ideal solution at any concentration. The total pressure is the sum of the partial pressures of two components. So this is the characteristics of ideal solutions. Ideal solutions में भी दो प्योर कंपोनेंट्स हैं और किसी एक भी मोल फ्रैक्शन के और P1, P2 और P में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलना चाहिए। P1, P2 स्ट्रेट लाइन से पास होना चाहिए और टोटल प्रेशर P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अब मेरे पास टाइम है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 5 मिनट लगेगा इसमें। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज रियल सॉल्यूशन। आपके सिलेबस में रियल सॉल्यूशंस थ्योरी दिया हुआ है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड नोन एज रियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ से डिविएट करते हैं। द सॉल्यूशंस, द रियल सॉल्यूशंस which are not follow the Raoult's law, Henry law, are known as non-ideal solutions. So what is the characteristics of non-ideal solutions? You can see in this page. Point number 1, the non-ideal solutions do not obey the Raoult's law over the whole range of concentration. Raoult's law को follow नहीं करेगा। When two components mix to form a non-ideal solution, there found evolution or absorption of heat, that is delta H mixing not equal to 0. आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था, इसमें मिक्सिंग 0 नहीं होगा। इसमें या तो एनर्जी लिबरेट होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट इज नॉट 0। डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट 0। या तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है या तो टोटल का वॉल्यूम घट सकता है। तो डेल्टा बी इज नॉट 0, delta H is mixing is not 0, and they did not follow the Raoult's law. So what is the basic difference between ideal solutions and non-ideal solutions? Ideal solutions follow the Raoult's law. Non-ideal solutions does not follow the Raoult's law. For the ideal solutions, delta H mixing is 0, but in non-ideal solution, delta H mixing is not 0. For ideal solutions, delta B mixing is 0, but for non-ideal solution, delta mixing is not 0. I proceed further. The deviations from Raoult's law of non-ideal solutions are due to the difference in the molecular structure of the two components, which results in the difference in the intermolecular forces. Two types of deviations from Raoult's law are occur for non-ideal solutions. ये deviations क्यों होते हैं? जो molecular structure है component का, उनके बीच में जो फोर्स एक्टिंग होता है, उन फोर्स के इक्वल न होने के कारण ये डिविएशंस होता है। तो हम पॉजिटिव डिविएशंस क्या होते हैं इसको बताएंगे पहले। इफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन अनलाइक कंपोनेंट्स से ए बी, यहाँ ध्यान से देखिए, फोर्स बिटवीन ए बी आर वीकर देन दोज ऑफ द प्योर लिक्विड्स से ए और बी, the escaping tendency of the components A and B in the solutions are higher than the escaping tendency of the individual pure components. इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मेन रीजन क्या इसमें है। देखिएगा, इफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन अनलाइक कंपोनेंट्स से ए और बी, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, मिक्स करते हैं, ए और बी आपस में मिक्स हो गए, तो ए और बी के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यदि ए और बी से ज्यादा है तो स्केपिंग कैपेसिटी जो होगी कंपोनेंट की वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। दो कंपोनेंट ए और बी हैं, दोनों को हम मिक्स करते हैं,
तो आपस में मिल करके ए बी बनाएंगे, ए डैश बी। तेरी ए और बी के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा स्ट्रांग हो जाएगा ए और बी से। तो क्या होगा कि जो स्केपिंग कैपेसिटी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वो नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि ए और बी मिक्स करने के बाद उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देगा सॉल्यूशंस। तो स्केपिंग कैपेसिटी, the escaping tendency of the components A and B in the solutions are higher than the escaping tendency of the individual pure components. Therefore, the partial pressure of the pure components will be higher than the predicted by Raoult's law. This leads to positive deviations from ideally. Mathematically, P1 is greater than P10x1 and P2 is greater than P20x2 and total pressure P is greater than P10x1 plus P20x2. ओके, इसमें पॉजिटिव डिविएशंस जब ए और बी के फोर्स में वीक हो जाएगा तो स्केपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं इसके पहले आपको बताया कि ए और बी के बीच में यदि इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया तो स्केपिंग कैपेसिटी घट जाएगी, लेकिन ए और बी के बीच में कोहेसिव फोर्स कम हो गया तो जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट ए और बी भी थे उनकी स्केपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो सॉल्यूशन से तेज जाएंगे। उस केस में पार्शियल प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। वही केस है यहाँ पे। इफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन ए बी इज वीकर देन द स्केपिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज and partial pressure are increases and total pressure is also increases. So mathematically you can represent to this sentence P1 is greater than P10x1, P2 is greater than P20x2 and pressure P10x1 plus P20x2. This is shown in the vapor pressure versus composition diagram. Then in the figure dotted lines represents the ideal behavior while the solid lines represents the actual vapor pressure for each component and the solution. इसमें देख सकते हैं फिगर में ये जो डॉटेड लाइन्स हैं वो आइडियल बिहेवियर है, लेकिन चूंकि आइडियल बिहेवियर से देखो एसीटोन और हमने ये एथर का मिक्सचर लिया है तो टोटल प्रेशर आना चाहिए जो डॉटेड लाइन उससे इंक्रीज करके ऊपर चला गया है। टोटल पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया है। यहाँ एसीटोन का भी प्रेशर देखिए जो डार्क लाइन है वो भी बढ़ा हुआ है और ईथर का भी जो पार्शियल प्रेशर है वो भी बढ़ा हुआ है। जो ओरिजिन से जाना चाहिए था, जो डॉटेड लाइन है उससे जाना चाहिए था, नो हो करके दोनों का प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऊपर टोटल प्रेशर भी देखो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको इन द फिगर डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट द आइडियल बिहेवियर, डॉटेड लाइन आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है while the solid lines represent the actual vapor pressure for each component and the solution. In such system there would be an increase in volume on mixing and also on absorption of heat on mixing. That's it. डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 से अधिक होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 से अधिक होगा। तो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशंस। जो आइडियल प्रेशर था उससे बढ़ गया, दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज कर गया और टोटल प्रेशर भी इंक्रीज किया। किस कंडीशन में? जब ए और बी के बीच में कोहेसिव फोर्स वीक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल है। द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आर वाटर डाइजेन, एसीटोन ईथर, बेंजीन क्लोरोहेक्सेन, एसीटोन कार्बन सल्फाइड etc. दिस इज द सिस्टम ऑफ द which shows the positive deviations. Last है, it takes only 2 or 3 minutes. Negative deviations. If the attractive force, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही कि attractive force between AB यदि ग्रेटर होगा तो escaping capacity कम हो जाएगी। जब escaping capacity कम हो जाएगी तो प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, उसका टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जो आइडियल बिहेवियर था
उससे पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया, टोटल प्रेशर भी कम हो गया। यू कैन सी इन द फिगर। तो दिस इज द नेगेटिव डेविएशंस। मैं इसको पढ़ भी दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको थीम बता दिया इसमें। If the attractive force between the unlike molecules in solution AB unlike molecules, are stronger than those between the like molecules AA and BB in pure liquid, then the escaping tendency of a component from the solution would be less and it would be from the pure liquid. Therefore, partial pressure of both the components will be less than that of predicted by Raoult's law. This leads to negative deviations from Raoult's law. This is shown in figure. Figure में आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ. Mathematically, P1 is less than P10x1, P2 is less than P20x2, and also total pressure P is also less than P10x1 plus P20x2. In such systems, there would be a contraction in volume and evolution of heat transmission. इसमें डेल्टा एस मिक्सिंग लेस देन 0 हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो गया. Few examples of liquid pairs which exhibit negative deviations from Raoult's law: chloroform acetone, methanol acetone, pyridine, acetic acid, etc. When you can see in the figure, आप मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि जो आइडियल बिहेवियर है उससे एसीटोन का भी प्रेशर कम आया है, पार्शियल प्रेशर, और क्लोरोफार्म का भी देखिए नीचे ग्राफ आया है जो डार्क लाइन है, और टोटल प्रेशर भी जो आइडियल प्रेशर होना चाहिए उसके नीचे आ गया है, शिफ्ट कर गया है टोटल प्रेशर भी. तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन. और जिसमें प्रेशर बढ़ गया उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं. अब आई कंक्लूड दिस portion. When acetone and chloroform are mixed, they form hydrogen bonds with each other. इसमें और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इनके फोर्स और बढ़ जाएंगे, स्केपिंग कैपेसिटी सोल्यूशन में और कम हो जाएगा. ठीक है. एज ए रिजल्ट, the intermolecular attraction between acetone and chloroform becomes stronger. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में वर्क करेगा तो फोर्स और स्ट्रांग हो गया. The tendency of the molecules to escape from the solution decreases, and hence the vapor pressure also shows a decrease in its value. So this is the negative deviations. What is the positive deviations? So this is my last lecture, and I hope that you take the idea about the solutions, what are the Henry laws, what are the molarity, normality, ppm, etc. ppm की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको रिसर्च में जाएंगे तो. सब जगह ppm में सॉल्यूशन बनते हैं, 1 ppm 2 ppm. तो हमने आपको सीधा बता दिया कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. जितने ppm का सोल्यूशन बनाना है उतना ही मिलीग्राम वेइंग कीजिए, 1 लीटर में डिजॉल्व कर लो, स्टॉक बना लीजिए, फिर उसे डाइल्यूट करते रहिए. फिर आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मैं सब आपको विस्तृत रूप से बताया. एंड आई स्टॉप हियर. और जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप जी सर.